जय हिंद विवर्स। एनडीए एनए 2021 का जो पेपर है वो 14 नवंबर को हुआ है। उस पेपर में जीएटी पेपर के इंग्लिश सेक्शन को हम देखेंगे। इस पेपर का सॉल्यूशंस आपको दूसरे एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होगा। मेरे बारे में विवर्स, ये पार्ट ए है जिसमें आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जी हाँ, ये सब वर्ड्स हैं पी क्यू आर एस, इसको आपको एक सीक्वेंस में लाके एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पहले में जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको मिलेगा क्यू पी आर एस। तो क्यू पी आर एस करने के बाद जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं, द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज, तो ये पहले ही नजर में ऐसा लग रहा है कि ये वाक्य का जो है सब्जेक्ट हो सकता है, द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया। और जब आप अरेंज करेंगे उसको इस सीक्वेंस में, क्योंकि सीरियल क्यू से शुरू होने वाले दो ही ऑप्शन है, या तो क्यू पी आर एस या क्यू एस आर पी, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्यू पी आर एस। और जब आप इसको अरेंज करेंगे तो जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ न्यूमेस्टिक आर्कियोलॉजिकल एंड देन ये जो बाकी की सारी चीजें हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जब आप रीस्ट्रक्चर करेंगे तो जो रीअरेंजिंग के बाद जो सीक्वेंस होगा दैट विल बी एस पी आर क्यू। तो एस पी आर क्यू के जब आप करेंगे तो सेंटेंस होगा, देयर आर मेनी वेज टू रीस्ट्रक्चर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट इट provides mobility to everyone and not just the affluent section of society. So that will be the correct sequence. Now moving to question 3. So the correct sequence will be B, R, P, Q, S. The globe shows Earth's spherical shape. तो यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट पता चल रहा है, तो इससे आप देखेंगे तो सीरियल R से जो ऑप्शन करेक्ट है केवल एक ही है, और जब आप सीक्वेंस इसमें अरेंज करेंगे तो करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा। Then moving to question 4, correct option is option A, that is PRQS. The function of the capillaries is to take nutrients, oxygen and other material to all the cells in the body and to take away their waste material. So that is correct sequence. Moving to question 5. So correct sequence will be SPQR. SPQR, her singing sounded pretty melodious like mine even to someone with a teen ear. So very simple. Now, 6, correct sequence will be option B, QRSP. The government of India under the British was pro-capitalist, though it took some half-hearted steps to mitigate the sorry state of affairs in the modern factory. So B is correct answer. Moving to 7, then correct sequence is option C, RSQP. RSQP, a major characteristics of British rule in India and the net result of British economic policy was the prevalence of extreme poverty among its people. Moving to 8, you can't, then correct sequence will be A, SQPR. SQPR means he doesn't look very intelligent, but you can't judge a book by its cover. आपने एक एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, you can't judge a book by its cover. Moving to question 9, option A, RQPS is correct option. Evidence of a crisis in party politics can be found in the decline in party membership and partisanship, as well as in the rise of anti-party groups and movements. Question 10. So option C, RSQP is correct options. So RSQP, the provision of public goods and services can be regarded as a complex mixture of contributions from government, market and voluntary organizations. So option C. अगला क्वेश्चन एंटोनिम का है जिसमें आपको अपोजिट मीनिंग निकालनी है। हिज ओपिनियन इज लॉपसाइडेड। सो लॉपसाइडेड का मीनिंग होता है वन साइडेड, और इसका जो अपोजिट होगा दैट विल बी बैलेंस। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिज वर्क इज प्रेजवर्दी। सो प्रेजवर्दी आप जानते हैं प्रशंसनीय, तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम है दैट इज ऑप्शन बी, कंडेमनेबल। ये ध्यान दीजिएगा, ये कमेंडेबल है, ये कंडेम है जिसमें आप किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। Next, his deeds had retrograde results. So retrograde means making a situation worse or returning to how something was in the past. Something you are making it worse. So इसके जो काम है उसका जो है retrograde, कुछ बुरा रिजल्ट था. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है that is progressive. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, एंटोनिम. नेक्स्ट, he always offers palatable solutions. So palatable का मतलब होता है acceptable, pleasant, something agreeable. तो करेक्ट जो एंटोनिम है that is option C, unacceptable.
नेक्स्ट, हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब आप जानते हैं छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड है, जहां पे आप बहुत बारीकी से कोई चीज देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम है दैट विल बी ब्रॉड बेस्ड, ऑप्शन ए। नो, he is always obdurate in his behavior towards other people। so obdurate का मीनिंग होता है stubborn, ढीठ बेसिकली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबल। मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर सोहन। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, बहुत गहरा। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम है दैट इज सुपरफिशियल, केवल ऊपर ऊपर से, न दिल से नहीं, गहरी इच्छा नहीं। वी वर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट का मतलब होता है डिफिकल्टी। सो यहाँ पे समथिंग अपोजिट ये इसका जो है वो है काम, शांत। नेक्स्ट, अमित इज अ डॉगमेटिक पर्सन। सो डॉगमेटिक का मतलब भी ढीठ से रिलेशन है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम है दैट इज एमिनेबल। सो एमिनेबल का मतलब होता है हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, खुशी से मान जाने वाला, ज्यादा ढीठ नहीं। नाउ सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। फिकल का मतलब होता है ऑलवेज चेंजिंग योर माइंड और फीलिंग्स टुवर्ड्स समबडी। तो यहाँ पे फिकल बहुत टेम्पररी, इधर उधर घूमने वाला। तो इसका जो है करेक्ट एंटोनिम दैट इज स्टेबल। नाउ अब इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर लें। वंस ओवर का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, टू डू समथिंग क्विकली। वंस ओवर, जल्दी से, ओवर, टू डू समथिंग क्विकली। नाउ अ बैग ऑफ बोन्स, सो ऑप्शन बी, एन एक्सट्रीमली थीन पर्सन। ना देखिए कितनी खूबसूरत इडियम है यह, बैग ऑफ बोन्स। बोन का बैग है मतलब बहुत दुबला पतला आदमी है। नाउ मडी द वाटर, सो ऑप्शन डी, टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। जब आप वाटर को मडी कर देते हैं, एकदम कीचड़ की तरफ बना देते हैं, मतलब आप चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। टू लेवल विथ, टू लेवल विथ का करेक्ट ऑप्शन है टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। शो योर हैंड, जब आप किसी को हैंड दिखाते हैं तो इसका मतलब है यू आर टेलिंग अबाउट योर प्लान टू समबडी। यदि मैं आपको हैंड दिखा दूं मतलब मैं अपनी प्लान, आपको अपनी सीक्रेट जो है वो बता रहा हूं। टू पुल अप, पुल अप का मतलब जो है, आपने बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि कुछ ऊपर उठाना, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टू चेक वन सेल्फ, अपने आप को रोकना। या जब आप किसी को बोलते हैं पुल अप योर सॉक्स, तो आप ये बताना चाहते हैं कि अपने बिहेवियर को, अपने काम पे आप ध्यान दो, इसको करेक्ट करो, सुधारो। तो यहाँ पे पुल अप का मीनिंग है टू चेक वन सेल्फ, अपने आप को रोकना। नाउ बी आउट ऑफ एक्शन, सो बी आउट ऑफ एक्शन मतलब वो नॉन फंक्शनल है, दैट इज ऑप्शन सी, टू बिकम डिसफंक्शनल। नाउ लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, नॉकिंग है बहुत हार्ड, नॉकिंग के बाद यदि आप कुछ सीखते हैं, इसका मतलब है यू आर लर्निंग समथिंग थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन डी। नाउ रेज सम हैकल्स, हैकल्स का मतलब होता है टेम्परामेंट, गुस्से को बढ़ाना। तो यहाँ पे जब आप गुस्से को रेज करने का मतलब है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, दैट इज टू एनॉय समबडी, गुस्सा दिलाना। अ मैन ऑफ लेटर्स, सो इट्स ऑप्शन बी, अ स्कॉलर इन लिटरेचर। स्पॉटिंग एरर, इसमें आपको जो एरर है उसको स्पॉट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, आप देखेंगे नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल। सो ऑन अप्रैल नहीं होता, एक मंथ के लिए आप इन अप्रैल यूज करते हैं। नाउ द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्दी हैजर्ड। तो यहाँ पे एक आपको प्रोनाउन चाहिए दैट इज इट, इट बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड। India is a country of linguistic and cultural diversity with multiple ethnic and social groups, so no error. Why does the lapse rate affect the tendency? So effect आप जानते हैं यहाँ पे verb की तरह, एक verb चाहिए, तो यहाँ पे effect ना हो के affect यूज होगा। effect एक noun है and affect verb है। So the thorax of is the upper part of our body from the neck down to the bottom. So neck down to the bottom, यहाँ पे down लिखने की कोई जरूरत नहीं है, from the neck to the bottom of the ribs and diaphragm. The practical uses of astrology have seldom been seriously studied. So seldom का जगह पे आप never use कीजिए, क्योंकि seldom का मतलब होता है infrequently या rarely, but never का मतलब होता है कभी, अभी तक नहीं हुआ है, on no occasion। तो ये जो practical use है एस्ट्रोलॉजी का, वो अभी यूज नहीं हुआ है सीरियसली इंडिया के बाहर। Next, she collected some armful of medicines and poured them down a drain. So pour them down a drain के बजाय आपको बोलना है the drain, जिसका मीनिंग होता है when you are pouring something down the drain, that means you are wasting or throwing away. Next, option C correct answer है। In many countries the United Nations or the internationally organized peacekeeping forces, ध्यान देंगे the United Nations भी एक सिंगुलर है और the other internationally organized peacekeeping forces, so जो forces जो है वो भी सिंगुलर है।
तो यहाँ पे जो वर्ब एग्री होगा दैट विल बी सिंगुलर, इज ट्राइंग टू, ना कि आर ट्राइंग टू। नेक्स्ट, अर्ली सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर। अर्ली सिटीज की बजाय आपको बोलना है अर्लियर सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड, बट टुडे सिटीज ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंट सोर्सेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर। Next, climate change, whether it is natural or human induced, is stressful for the people. So यहाँ पे stressful की बजाय आप harmful यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिनोनिम का क्वेश्चन है जिसमें आपको सिमिलर मीनिंग या नियरेस्ट मीनिंग वाले वर्ड जो है वो मार्क करना है। ही इज एसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। लो ब्रो का पर्सन मीनिंग होता है कंटेनिंग नो सीरियस आर्टिस्टिक और कल्चरल आइडिया। बेसिकली एक जिसको कोई ढंग नहीं है, कोई अच्छे तरह से बिहेव नहीं करना, कल्चरल उनको मैनर नहीं मालूम है। सो यहाँ पे कोज भद्दा बेसिकली ये इसका करेक्ट सिनोनिम है। इसका मीनिंग भी और इसका दोनों का सेम है। नाउ हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कोई आपकी गहरी इच्छा, पास्ट की जो इच्छा है। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, हिज ट्रुएंसी इज डेट्रीमेंटल। सो ट्रुएंसी का मतलब होता है एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति बेसिकली, एंड डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक। तो उसकी अनुपस्थिति से बहुत हानिकारक नुकसान हो रहा है, दैट मीन्स उसका जो एब्सेंटिज्म है दैट इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ सिनोनिम ऑफ ट्रुएंसी। नेक्स्ट, ही इज अ मेलफिसेंट पर्सन। तो यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम है इसका दैट इज ऑप्शन बी, कनिंग। और मेलफिसेंट का मीनिंग होता है कॉजिंग और हार्म और डिस्ट्रक्शन स्पेशली बाय सुपर नेचुरल मीन्स। एक तरह से बोले दुष्ट आदमी जो गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाता है। तो कनिंग एंड मेलफिसेंट दोनों ये सेम है, सिनोनिम। नेक्स्ट, हिज सॉलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड। उसकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, गंभीरता को क्या है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डिग्निटी। His bounty is limitless. बाउंटी का मतलब होता है किसी को आप कुछ चीजें दे देते हैं एक तरह से उदार पूर्वक, है ना, समथिंग लाइक गिफ्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दैट इज बेनिवोलेंस। द होलोकॉस्ट वॉज एक्सपीरियंस बाय मिलियंस। होलोकॉस्ट का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है जान माल का, तो थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्शन। विनाश से लाखों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया। Now his aversion is known to all. Aversion का मतलब होता है something disliking, आप किसी को पसंद नहीं करते, वो भी strong feeling of not liking somebody. So that is correct option is hostility, दुश्मनी। Now to be able to decipher something is wonderful. Decipher का मतलब आप डिकोड कर देते हैं, उसकी मीनिंग को निकाल लेते हैं जी, उस चीज की मीनिंग जो नॉर्मली क्लियर नहीं होती, इसको कुछ हद तक आप डिकोडिंग भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, डिकोडिंग। To succeed in reading or understanding something that is not clear, decipher. Now last, it is the opportune time to think about investment in the real estate sector. बहुत correct, opportunity, opportune, same word, that is appropriate. सही समय आ गया है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। तो व्यूअर्स, एनडीए इंग्लिश का भी क्लास आप मुझसे ले सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मिलके 100% स्कोर करें इंग्लिश में। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज आपकी तैयारी के लिए मैं बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।